हम लोग रिवर के पास आ चुके हैं, काली रिवर। स्लॉथ बेस एग्जैक्ट क्लॉथ्स के मार्क्स भी है ऊपर, वहाँ ड्रॉपिंग करेंगे ताकि एक टेरिटरी मार्किंग भी बन जाता है। यहाँ से दिखाता हूँ ये कितना ट्रीज के बीच में कंपटीशन चलता है। 2 o'clock। क्या बात है, फिश पकड़ लिया उसने। This is such a beautiful area in front of our guest house. Good morning, guys. Take a look at this one. This is Dandeli. हम लोग एक सेंटर पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे काली रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिलता है पीछे, और ये सब बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। We are standing on the Kali River bridge. This is also called as the Supa bridge. It's a fairly long bridge. I have invited my friend Kedar for birding tour of Dandeli, and I have assured him that I will show him all the Western Ghat species, some endemic species also. So far we have not had many endemics, but we have had a very good sighting of hornbills and many other raptors also. Anyway, why we are here is the headbutting of the hornbills. I am expecting that to happen. The headbutting is that the male and the male fight over a female, and they sometimes even twine their beaks together and go in for a roller run. Just as they are about to hit the river or the ground, they just unlock and then leave. It's a very beautiful sight. Wow. If we are very lucky, we'll be able to see. But the main season to see the butting would be March. Okay. But even today also we expect that to happen. Hope for that head butting. Okay. It's going to be a wonderful sight if we get it. This Kali River originates at Diggi in Supa. Earlier it was a village. That's why it's called a Supa Dam. Supa Dam. Yeah. After construction of this gravity dam, that was relocated in Joida and as well as Ramnagar. Okay. Okay. There's a concrete gravity dam having it's the highest dam in Karnataka. Okay, and having a short gorge and most economical dam. It is the main reservoir for Kali project. The Kali project basically a hydroelectric project. It originates here and ends in and joins the Arabian Sea. That's really It was nice. commissioned in 1985. One more beautiful aspect of Kali River is it flows in the Kali Tiger Reserve, and it's a very beautiful river. And as it goes and ends at the Arabian Sea, joins the Arabian Sea at Karwar, Sadashivgarh, we have got one of the most beautiful, pristine mangrove ecosystems in all of Karnataka, or possibly the best I have seen in Tamil Nadu, I've seen in Kerala, I've seen in Karnataka. This the Kali mangrove at Sadashivgarh is one of the best and still well preserved. That was one aspect many people have not seen. Even people who stay and come watch the Kali Tiger Reserve, usually they don't do the mangrove. They should do. Okay. Thank you. ये रहा इंट्रो इस मैग्निफिसेंट लोकेशन का। हम लोग जितनी देर यहाँ पे रुके थे 5-10 मिनट, कम से कम 2 to 3 फ्लॉक्स हमने देखे हैं यहाँ पे हॉर्नबिल्स के, वाइट हॉर्नबिल्स के, जो पेयर्स में जा रहे हैं। तो बहुत ही कमाल का लोकेशन है ये। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नेचर ट्रेल के लिए, तो अभी देखते हैं हम क्या क्या स्पॉट करेंगे। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी एंट्रेंस है। तो अभी हम लोग आए हैं हॉर्नबिल्स को फ़ोटोशूट करने के लिए, हॉर्नबिल्स की फ़ोटोग्राफी करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया व्यू मिल रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए।
और जो एंट्रेंस है हमारा मेन रोड से अंदर आए। तो वहाँ जाएंगे ना अभी? हाँ जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं पवन पाटिल हॉर्नबिल रिवर रिजॉर्ट में एज अ नेचुरलिस्ट काम करता हूँ। अभी हम जो है हॉर्नबिल रिवर रिजॉर्ट में जो दांडेली के गणेश गुड़ी एक ऐसे प्लेस है छोटा सा वहाँ पे, और आप देख सकते हो साइड में जो रिवर है काली रिवर, तो काली रिवर के साइड में ही हॉर्नबिल रिवर रिजॉर्ट है। और सर आए आज हमारे गेस्ट यहाँ पे, और हम जो नेचर वॉक का ट्रेल अभी स्टार्ट करने वाले हैं बर्डिंग के लिए। देखेंगे बहुत सारा स्पीशीज़ है यहाँ पे, जो एंडेमिक स्पीशीज़ भी है और रेयर भी मिलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स भी आए हुए हैं, बहुत सारे कुछ है। तो ट्रेल स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि फॉरेस्ट कैसे होता है। अभी जो है जोग्राफिकली देखोगे तो आप सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स में हैं अभी हम, ठीक है। वेस्टर्न Okay. घाट्स एक बिग माउंटेन चेन है। मैं एक्सप्लेन करूँगा ही बाद में भी, फिर भी छोटा सा इंट्रो आपको दे दिया। तो सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका बॉर्डर एरिया, काली टाइगर रिजर्व यहाँ पे पास में ही आता है। ये अभी सब रिजर्व फॉरेस्ट है। तो ट्रेल स्टार्ट करें। यहाँ का जो ट्रेल है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर ट्रेल है। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ियाँ हैं, और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ कॉल मिला था ट्रोगन का, लेकिन उसे ट्रैक नहीं कर पाए। अभी दूसरी साइड है, उसे ट्रैक करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी आगे डेंस फॉरेस्ट है, सनलाइट कम है। यहाँ पे वुडपेकर की आवाज़ आ रही है। सनलाइट और फॉग, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। और बर्ड्स के कॉल्स भी सुनाई दे रही है। तो ऐसे पाथवेज के ऊपर ही ड्रॉपिंग करेंगे ताकि एक टेरिटरी मार्किंग भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये रिसेंटली फिर भी मतलब एक 10-12 डेज बैक। और एक उनका दूसरा जो टेरिटरी मार्किंग करने का ये होता है, जो लेपर्ड्स होते हैं उसे स्क्रैच करेंगे एंड यहाँ पे यूरिन रिलीज करते छोड़ते, ठीक है। ये हो गया। एंड सेकेंड जो है टाइगर जो होते हैं, टाइगर प्लांट के ऊपर यूरिन स्प्रे मार्किंग करते हैं, करेंगे, ठीक है। तो वो भी टेरिटरी मार्किंग। और दूसरा जो ट्री ट्रंक होता है उसके ऊपर स्क्रैच मार्क्स, ओके। ठीक है। तो क्लॉज के मतलब जो क्लॉज होते हैं उसके उसे शार्प करने के लिए भी, एंड वो टेरिटरी मार्किंग भी बन जाता है। दैट इज़ वाइल्ड। सो यहाँ पे लेपर्ड्स हैं और टाइगर्स तो डेफिनेटली है। देखते हैं मिलते हैं आगे। नहीं, अब थोड़ी थोड़ी धूप खिल रही है और विजिबिलिटी भी बढ़ रही है। बहुत सारे बर्ड्स है यहाँ पे। ड्रैगन अभी मिला था, लेकिन जैसे ही वो कैमरा निकाला उड़ गया। बहुत सुंदर बर्ड है, देखते हैं और ट्राई कर रहे हैं, मिल जाएगा। हमें फिर कुछ वानर दिखे। देखिए ये कितना सुंदर नज़ारा है फॉरेस्ट का। ड्रैगन बर्ड की तलाश जारी है। बीच बीच में ये अच्छे नज़ारे मिल रहे हैं तो थोड़ा रुक के इनका आनंद ले रहे हैं। फिर ये एक विशाल काय पेड़ दिखा। कितना बड़ा है, 200 साल से भी पुराना होगा। और तभी वहां पे हमें ये मिली शेकरू। द बेस्ट स्क्विरल, मालाबार जायंट स्क्विरल।
मुझे लगता है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत गिलहरी है। इससे ज़्यादा सुंदर मैंने तो अभी तक नहीं देखी। हाँ, शीशम वो बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। तो ये आवाज़ जो आ रही है वो बैक वाटर की, डैम की? नहीं सर, ये अपना काली रिवर का जो काली stream है, रिवर का है। हाँ। ओके। आपने जो रिजॉर्ट में देखा हाँ 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 हाँ, उसके जस्ट नीचे से। आवाज़ बहुत तेज आ रही है। हाँ, वहाँ पे रैपिड है। ये टीकूड। यस, ये पत्तों से समझ में आ जाता है। साज। टीकूड का ये बाकी जो होता है उस साइड का फ्लोर हाँ। और ये साइड का फ्लोर, और जहाँ पे टी ये जो प्लांट है, हाँ ट्री है, हाँ। जहाँ पे नीचे क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? बाकी के पत्ते छोटे हैं और टीक के बड़े बड़े हैं। हाँ, बट नीचे फ्लोर पे क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? उस साइड देखो और ये साइड देखो और सेंटर पे देखो। यहाँ पे ग्रास बहुत ग्रास, ओके, यहाँ पे ग्रास है। हाँ। वहाँ पर भी छोटे छोटे प्लांट्स है, Plants बट यहाँ पे नहीं है। नहीं है। टीकूड जो ट्री है, लीफ का साइज भी बड़ा होता है, सनलाइट भी प्रॉपर आता नहीं, और हीट ज्यादा होने से ठीक है वाटर इवापोरेट करता रहता है। राइट। तो होता क्या है, वहाँ पे देखिए ग्रास ग्रो ही नहीं हो पाता। हाँ, तो वेस्टर्न घाट्स में फॉरेस्ट बिल्कुल डिपार्टमेंट ने सही भी है। अभी क्या किया है, टीकूड का प्लांटेशन एक स्पेसिफिक जगह पे ही किया है, सभी अच्छा। जगह नहीं किया। ओके। जो पहले होता था कि कहाँ पर भी प्लांटेशन करो, उससे जो इंडिजिनियस जो भी स्पीशीज होगा, नेटिव स्पीशीज, उसके लिए बहुत मतलब हार्म था वो। बट अभी यहाँ पे देखो ठीक से, मतलब आपको पता चलेगा उस साइड ग्रास अच्छे से ग्रो हो रहा है और ये साइड ग्रास नहीं है यहाँ पे। More sunlight will fall on this. राइट Yeah. राइट। No growth. रीपर, क्लाइंबर्स, वुड क्लाइंबर्स। ठीक है, अपने यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? वहाँ पे ओरिजिन है। गारम भी। हाँ राइट। मत्ती का ये हाँ, गरम भी, मत्ती का गरम है। भी। lines of हाँ। this. मत्ती ये और ऊपर ये तक जो गया climber है, है, हाँ। ठीक है। हाँ. वुड क्लाइंबर्स बोल सकते हैं हम, बट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट्स का, इस वुड क्लाइंबर्स की वजह से फॉरेस्ट में एक ट्रीज के बीच में कंपटीशन चलता है, हेल्दी कंपटीशन होता है। ठीक है, ठीक से देखिए, नीचे से ऊपर तक गया है, सही है ना? हाँ। हाँ, मतलब क्या? कौन ज्यादा ऊंचा? Moving upwards. एग्जैक्टली, हाइट। Height. ठीक है, Height. Moving upwards. अपवर्ड्स, मूविंग Yeah, अपवर्ड्स, yeah, राइट? yeah, yeah. राइट। बट क्यों? व्हाई? They need sunlight. 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 हाँ। एग्जैक्टली, For growth. एग्जैक्टली, सनलाइट के लिए। हाँ. तो होता क्या है, ट्रीज के बीच में अपने आप ही कंपटीशन चलता है। तो वेस्टर्न घाट्स में आप देखोगे, ये तो सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स है, Yeah. ठीक है। वेस्टर्न घाट्स वैसे देखा तो स्टार्ट होता है महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला केरला। एंड तमिलनाडु, हम्म, ठीक है। हिमालय से भी बहुत पुराना है, हम्म। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हम्म, तो बहुत सारा स्पीशीज मिलेगा आपको, फ्लोरा एंड फोना, हम्म, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, और सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स का जो एलिवेशन है सी लेवल से, हम्म, सबसे कम वेस्टर्न घाट्स का एलिवेशन यहाँ पे है, हम्म, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र बॉर्डर एरिया। राइट। महाराष्ट्र के तिलारी, मतलब चंदगढ़ तालुका कोल्हापुर का, हम्म, और सिंधुदुर्ग का दोडामार्ग, दौड़ा मार्ग। ठीक है, जो बेलगाम एंड गोवा के पास है, राइट। ठीक है। तो वहां से टेरन थोड़ा चेंज होता है, ओके। इसलिए आपने अभी तक भी देखा होगा, सर आपको तो पता ही होगा, तो किंग कोबरा जो है वो सिर्फ मिलेगा वो दो तालुकाज में, बिल्कुल। महाराष्ट्र, बिल्कुल। ठीक है। जैसे फिर स्लेंडर लॉरिस करके एक स्पीशीज है प्राइमेट्स में, जिसको हम लोकल कोंकणी मराठी लैंग्वेज में वनमानुस कहते हैं, कन्नड़ा में काड़ पापा कहते हैं सर, ठीक है। वो सिर्फ वहां से ही नीचे मिलेगा, ऊपर नहीं। ओके। तो एलिवेशन से फिर वेजिटेशन के ऊपर फिर इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स मिलना ना मिलना, वो सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि ग्रासलैंड, डेंस बिल्कुल, फॉरेस्ट, हैबिटेट चेंज हो हाँ, जाता है। हैबिटेट चेंज होता है, ठीक है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई डिसिडियस, ड्राई मॉइस्ट, ये मॉइस्ट वाला है ना? हाँ। तो ये सब मैटर करता है स्पीशीज का मिलना। वैसे तो 60-70% सिमिलरिटीज है वेस्टर्न घाट्स में, ट्रीज एंड इसमें, ठीक है। तो वैसे सब बना हुआ रहता है। And Western Ghats are older than Himalayas. हिमालयस, यस, Yeah, definitely. हिमालय। It is now world heritage, GI tag is there. डेफिनेटली। Yeah. बहुत अच्छी जानकारी दे दी आपने, थैंक यू। अभी जनवरी में हम लोग आप आए हैं यहाँ पे,
तो अभी थोड़ा फॉगी है, थोड़ा कोहरा दिख रहा है हर जगह। और ये देखिए पीछे, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये कितना सुंदर लग रहा है। वो सनराइज जो आते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा ठंडा है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट है। अभी ट्रोगन मिला नहीं है, अभी सर्च जारी है। देखते हैं, अभी काली रिवर की ओर जा रहे हैं। वहाँ पे जो आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, वो काली रिवर की है। यस, टाइप ऑफ ब्रैकेट फंगा है, ओके। हाथ लगाने से लगेगा कि ये डेड है, ड्राई है, बट एक्चुअल में ये ग्रो हो रहा है। ग्रो हो रहा है। हाँ, ठीक है। ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, बट दिखाने का इंटेंशन ये है मेरा कि लोगों का मानना होता है कि ऐसे जो ड्राई ब्रांचेस है, ठीक है, डिकेइंग वुड, डेड ट्रीज, उसका फॉरेस्ट में क्या काम है? वो तो मर गया है तो हम लेके जा सकते हैं, बट बहुत सारा छोटा छोटा मशरूम के स्पीशीज जो होता है छोटा छोटा, वो इसके ऊपर ही ग्रो होता है, ठीक है। मॉइस्ट होना चाहिए उनको, बिल्कुल। एंड डिकेइंग वुड, ठीक बिल्कुल। है। और ये डिकम्पोज करने का भी काम करते हैं, इवन टर्माइट्स भी। तो फॉरेस्ट में इसलिए रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में से आपको कुछ भी उठाने के लिए परमिशंस नहीं होते, क्योंकि फॉरेस्ट ऐसे सब कनेक्ट होता है। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नाइस नाइस नाइस। इकोसिस्टम। क्लाइंबर्स, वुड क्लाइंबर्स। कंफर्म एंटिल्स, वहाँ पे भी कॉलोनी है। ओके, श्योर वो टर्माइट है, टर्माइट। टर्माइट। टर्माइट्स, ओके, ठीक है। टर्माइट्स बोथ आर सेम, नो एंटिल्स एंड टर्माइट। सर मोस्टली एंट्स नहीं बनाते पिलर्स वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। पिलर्स में दिखेगा आपको वो टर्माइट्स का ही होता है। हाँ हाँ, एंट्स नीचे से डिग करके जो आते हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और हाँ। पॉट जैसे बनता है वो एंट्स का, ये टर्माइट्स, या, या। ठीक है। व्हाइट एंट बोल सकते हो, बट टर्माइट्स ये है, उसी फैमिली से रिलेट करते हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे पूरा कॉलोनी है, अच्छा। ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, टेम्परेचर मेंटेन हो बाहर का, या, मतलब in अंदर, respect of- इसलिए वो प्रॉपर उनका जो स्ट्रक्चर होता है, टावर्स मैं दिखाऊंगा बनाते आपको, हैं। टावर्स हाँ, में प्रॉपर, ठीक है। हाँ। उनका जो सलाइवा होता है उससे वो सॉइल में मिक्सचर करके मिक्स करके तो बनाते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी यहाँ पे थोड़ा पास है, ये वाला जो है हम्म। यहाँ पे ब्रेक किया है। डिस्टर्ब हुआ है। हाँ, किसने किया होगा? व्हाट वाज Sloth bear। स्लॉथ बेस, एग्जैक्टली, Sloth क्योंकि bear। यहाँ पे देखिए Sloth सर bear। क्लॉज के मार्क्स भी है ऊपर वहाँ पे, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ। क्लॉज के मार्क्स है। अभी होता क्या है स्लॉथ बेस का, दे आर फॉन्ड ऑफ दैट वन, Termites। एंट्स, राइट। Yeah. स्लॉथ बेस का 50% डाइट जो होता है हाँ। वो टर्माइट्स एंड एंट्स। अभी सेंट्रल वेस्टर्न घाट का जो मैंने बताया आपको, जो एरिया है वहाँ पे जो हमारे फॉरेस्ट के लोग हैं, विलेजर्स है, वो टाइगर लेपर्ड से नहीं डरते, क्योंकि यहाँ पे बिग कैट्स एंड ह्यूमंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि बिग कैट्स उनके हैबिटेट में सेफ है, एरिया बहुत बड़ा है, प्रे अच्छा मिल रहा है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे लेपर्ड के अटैक्स ह्यूमंस के ऊपर बिल्कुल नहीं है, हाँ। ठीक है। कैटल्स के ऊपर कभी कभी होते हैं, बट ज्यादा नहीं है काउंट। ज्यादा नहीं। बट स्लॉथ बेयर को ज्यादा डरते हैं, क्योंकि एवरी 40 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स में एवरी ईयर 4 to 5 केसेस कंफर्म है स्लॉथ बेयर्स के ह्यूमंस के ऊपर अटैक। बाप रे। अभी रीजन, थिक फॉरेस्ट, ठीक है। स्लॉथ बेयर्स हमेशा देखो हार्डली उनको 5 मीटर तक ही दिखता है, ठीक है, बट स्मेल करने का सेंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऑर्गन्स अच्छे हैं उनके, तो हमेशा वो नीचे ऐसे झुक के स्मेल करते करते चलते हैं। तो होता क्या है, जब ह्यूमंस ऐसे पास आते हैं, विलेजर्स से एकदम शांत होके चलते हैं। अभी हम तो थोड़ा बात कर रहे हैं, बट विलेजर्स जब अकेले चलते हैं तो शांत होके चलते हैं, तो ऐसे एकदम आमने सामने आ जाएंगे तो स्लॉथ बेयर चार्ज करते हैं, बिल्कुल। और उनके बिल्कुल। क्लॉज बहुत बड़े होते हैं, फेस के ऊपर अटैक्स होते हैं। तो स्लॉथ बेयर से ही थोड़ा ठीक से यहाँ पे फॉरेस्ट में घूमते हुए आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर जंगल में घूम रहे हो तो आवाज ऊंची करके, हाँ, चलो। ऊंची करके, हाँ, ताकि आप हाँ, होता है। सरप्राइज ना करो उनको। उनको सर, बट वही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से फॉरेस्ट में हो, तो टेरन क्या है, वहाँ पे स्लॉथ बेयर का सीन क्या है, या फिर उस फॉरेस्ट में कौन से वाइल्ड एनिमल से आपको ज्यादा मतलब परेशानी हो सकती है। डेंजरस नहीं बोल सकते, क्योंकि ह्यूमन से डेंजर है सबसे ज्यादा बिल्कुल। वाइल्ड एनिमल से भी, हाँ। ठीक है। तो बट कैसे थोड़ा आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से लोग बहुत ज्यादा बड़े डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं। हाँ, सर आप पुणे से हो, आपको पता होगा राजगढ़ फोर्ट के ऊपर बहुत सारे हनी बीज के अटैक्स होते हैं, बिल्कुल। तो वही रीजन है। वही रीजन। लोग स्मोक करते हैं, फिर डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स, ये वो, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रहता है उसका, तो एग्रेसिव अट्रैक्ट करते हैं उसको। अट्रैक्ट करते हैं। टर्माइट्स का काम है।
तो अभी हम लोग रिवर के पास आ चुके हैं, काली रिवर। तो थोड़ा आराम से है यहाँ पे। यस, ये तो थैंक यू। रिवर, अरे बाप रे। यस, आगे हम रिसोर्ट की ओर जा रहे थे तो हमें फिर से 2 गिलहरियाँ दिखी। एक हमें देखकर अलार्म दे रही थी, तो अभी ये कॉल दे रही थी। ये दूसरी स्क्विरल है और दूसरी जंगली फलों का लुत्फ उठा रही थी। हम रिसोर्ट के पीछे काली नदी के किनारे से जा रहे हैं। वाओ, किंगफिशर। हाँ, किंगफिशर। फीमेल अंदर रहती है, वो तो मेल आता है, फीड करता रहता है। ये हम यहाँ पे हाइट सेट कर देते हैं। ये हॉर्नबिल का नेस्ट है। क्या है? स्ट्रेट। हाँ, ओके, हाँ। आइए सर। वो जो सनलाइट आया ना ब्रांचेस से ऐसे, लेसर फिश स्पॉट हुआ सर आपको? सर हाँ है। हाँ, पे जाएंगे ना, क्लियरली मिलेगा हमें। वहाँ पर ट्री हाउस है ऊपर, और यहाँ से फिश ईगल का साइटिंग हो रहा है। देखते हैं, आपको अभी दिखाते हैं। तो अच्छा ये देखिए, तो सर ने कहा कि हम लोग राफ्ट में बैठ के वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से उसका फ़ोटो वगैरह सब निकालेंगे। ठीक है, चलिए। पूरा फ्रंट पे जाओ सर, यहाँ पर बैठेंगे। साइड में जाइए, साइड। दिस इज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। राइटिंग तो 2 o'clock। slowly close the door. चलते राफ्ट से फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती और ट्राइपॉड का हम यूज़ नहीं कर पाते। बहुत बड़ा बर्ड है ये। तो ये है फिश ईगल, लेसर फिश ईगल, सॉरी। एक पेड़ है यहाँ पर, वॉचिंग सिंस 20 साल से देख रहे रेगुलर एक ही पेड़, एक ही पर, हाँ सेम पेड़, डिफरेंट रेगुलर परचेस है 5-6। क्या बात है। कई साल पहले रूम के प्रॉपर्टी के सामने एक पर्च था, नेचुरल पर्च, वो गिर गया है। ओके। उसके बाद में सेम साइज, सेम ऐसा ही ऑलमोस्ट सेम पर्च तो सब ब्रांच लेकर के हम वहाँ पर माउंट कर दिए। ओके। तो इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। आफ्टर 1.5 ईयर वो एक्सेप्ट किया, उसके बाद में उधर बैठने लगा। अभी भी आप देख सकते हो उसको। क्या बात है। हाँ। मतलब इनका लाइफ स्पैन कितना? मे बी 40+ ईयर्स। 40+? या ईगल का थोड़ा ज़्यादा रहता है। चलते राफ्ट से फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती और ट्राइपॉड का हम यूज़ नहीं कर पाते। फिर भी अच्छी फुटेज मिली है हमें इस लेसर फोटोग्राफ्ड बर्ड की। सो वी कैन से ये तो रेसिडेंट हो गया फिर आपके प्रॉपर्टी का। हम लोग उसके नीचे ऑर्डिनरी मोबाइल में फोटो निकालते थे। हाँ,
इतना क्लोज। इतना क्लोज उतना यूज था, वो कंफर्टेबल जोन में था। अभी भी थोड़ा डिस्टर्बेंस। इस फिश ईगल के कारण मुझे एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे, जो अदरवाइज नॉट रियली पॉसिबल इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। ब्राह्मणी काइट कोई भी देखते नहीं मिल इतना कॉमन है। lesser fish eagle. हाँ Ithnophis humilis is a relatively small fish eagle, about 60 to 24 to 27 inches long, ओके। having span of 4 to 5.5 feet, weighing around 780 grams. Characterized by its grey brown body, white belly, and yellow eyes, making it smaller and paler than the similar grey-headed fish eagle. क्या बात है सर, इतनी जानकारी। Google. वो नहीं बोलने का, वो कई को उसको तकलीफ देने। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इतना हमको बोल दिया, बिल्कुल। बस काम बन गया। ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अली मैं बोलूँ प्रेडिक्शन से क्या होगा। बहुत सही है, ज़्यादा हाइट नहीं है ना। और काली नदी के दूसरे किनारे की ओर ब्राह्मणी काइट यानी एक समुद्री चील है। ब्राह्मणी काइट्स मेटिंग पेयर वो हमें दिखा। मेरे लिए वो भी एक लेसर फोटोग्राफ्ड बर्ड था, लेकिन शायद राफ्ट में बाकी सब के लिए वो बहुत ही कॉमन बर्ड था। सदर्न क्रोकर, जैसे आपने बोला अमेज़न है, अमेज़न। यहाँ से रिवर राफ्टिंग का रूट है जो लॉन्ग राइड के लिए जाते हैं, लगभग 11 किलोमीटर का। देखिए पानी का फोर्स कितना है। तभी हमें ग्रेट हॉर्नबिल्स दिखे ऊपर से उड़ते हुए, लेकिन फोटो खींचना पॉसिबल नहीं था। ग्रेट हॉर्नबिल पीछे तो मैं ले ही नहीं पाया। वाओ, ನೀವು ಬರ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇತ್ತ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಅದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಏನಾದ್ರು वो उसको चेज कर रहा था। इसी के टॉप पे ब्राह्मणी पे ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ಕಡೆ है। यहाँ से अच्छा मिलता था वो। हाँ। दिखेगा। वाइट रोड वैक्टेन। हाँ अभी हम राफ्टिंग के फर्स्ट रैपिड पॉइंट की ओर जा रहे हैं। हाँ 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 वो राफ्टिंग। हाँ, ये रहा राफ्टिंग का फर्स्ट रैपिड पॉइंट। वेरी स्ट्रॉन्ग वन। वहाँ पे एक ब्राह्मणी काइट ऊपर हवा में मंडरा रही थी मछली पकड़ने के लिए। क्या बात है, फिश पकड़ लिया उसने। स्नेक स्नेक। बहुत ही कमाल का है ये सब काली रिवर का। यहाँ से रिवर राफ्टिंग होता है सामने से, और यहाँ पे अंदर बर्डिंग। राफ्टिंग करते हुए फोटोग्राफी करने का ये एक अनोखा अनुभव मुझे मिला यहाँ। थैंक यू उमेश सर फॉर सजेस्टिंग एंड अरेंजिंग दिस फॉर मी। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। How was it? I mean beyond my words.
I would like to spend more and more time in such. See, this stretch Things. is actually like a Amazon rainforest. Yes. वो अमेजन रिवर के तट पे होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ. वैसा ऐसा ही ही है. अमेज आइलैंड्स इतना ब्यूटीफुल है, अमेजिंग अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल क्रिस्टन फॉरेस्ट है इधर साइड. ನಾ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೇನ್ರಿ ಇವಾಗ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಥ ನಿನಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. बोट राइड से फोटोग्राफी करना ही अलग ही एक्सपीरियंस है. मैं लगभग 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ. मेरा नाम जी उमेश हो. ये प्रॉपर्टी हमारे प्रॉपर्टी का नाम है हॉर्नबिल रिवर रिसोर्ट.